شاعر کہتا ہے ہم کو مٹا سکے دنیا میں یہ دم نہیں، ہم سے یہ دنیا ہے دنیا سے ہم نہیں، بیکار یہ غم نہیں، بے سبب علم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ رتبہ بھی کم نہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارا کام پیغام پہنچا دینے کا ہے، ہم نے پیغام پہنچا دیا، عمل کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھو واللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ دیکھو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا، اسی اللہ رب العالمین کے دربار میں سب کو حاضر ہونے کا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانے کا ہے، وہاں ہم سے تم سے سب سے حساب و کتاب لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 112 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے مختلف اقوام کا ذکر کیا، خصوصاً یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کا، ان کے کفر و شرک کا، غیر اللہ کی عبادات کرنے کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے علاوہ دوسرے نبیوں کا، اور ان تمام چیزوں کو بیان کر کے اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کر رہا ہے۔ اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دین کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ لوگ تمہارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تمہارا استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تم غم نہ کرو، یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، تمہارے پچھلے بھی بہت سارے انبیاء کرام آئے، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ کیا گیا، ان نبیوں نے بھی اپنے اپنے قوموں کو اسی بات کی دعوت دی تھی کہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے باوجود انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ سارے واقعات بیان کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین آیت نمبر 112 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر جمے رہیے، آپ اس پر ڈٹے رہیے، آپ اس پر ثابت قدم رہیے، اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے توبہ کیا انہیں بھی ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ کفر و شرک سے تائب ہو کر کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، میری عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، میری اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں، تیری اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، ظلم و ستم تو ان کے اوپر بھی آ رہے ہیں، لہذا جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسی پر ثابت قدم رہیے۔ دشمنوں کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار ثابت قدم رہنائی ہے، دین کے اندر جم کے رہنائی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنائی ہے۔ اگر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو تو ان سے مقابلہ کرو، لیکن یاد رکھو وَلَا تَطْغَوْا، زیادتی نہ کرنا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، جتنا تمہیں نقصان پہنچایا گیا ہے اتنا ہی نقصان پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایسے عالم میں بھی اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کی تلقین کر رہا ہے، کہہ رہا ہے دشمنوں کے اوپر بھی ظلم نہ کرنا، بدلہ اپنے اوپر کیے ہوئے نقصان کے حساب سے ہی لینا، اور پھر آگے تنبیہ کر رہا ہے
तुम लोग जो कुछ भी अमल कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सातों आसमान के ऊपर से देखने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत शुरा सूरा नंबर 42 की आयत नंबर 13 से लेकर 14 तक आयतें नाजिल कर दी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और कह दिया गया कि देखो मेरा जो दीन है दीन इस्लाम, यही दीन मैंने सारे नबियों के ऊपर वही करके नाजिल की है। नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर भी इस दीन को वही किया। ऐ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर भी इसी दीन को वही कर रहा हूं। और सुनो, इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी नाजिल मैंने किया इसी दीन को। उन सब के मानने वालों को यही वसीयत और नसीहत की थी कि दीन पर मजबूती के साथ कायम रहना, दीन की हिफाजत करना और आपस में तफर्रकाबाजी न करना। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके पास इल्म आ गया, इल्म आने के बाद, रोशन दलाइल के आने के बावजूद इन लोगों ने सरकशी की और दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत के बजाय उन्होंने गैरुल्लाह की इबादत और रियाजत करनी शुरू कर दी। आखिर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत शुरा की आयत नंबर 15 के अंदर फिर यही इस्तिकामत की तलकीन कर रहा है और कह रहा है फलिज़ालिका फदउ वस्तक़िम कमा उमिरत वला तत्तबि अहवाअहुम। इसी चीज की तरफ, इसी दीन की तरफ आप लोगों को दावत दीजिए, उनको बुलाइए और जैसा आपको हुक्म दिया गया है उसी पर जम के रहिए, डट करके रहिए, साबित कदम रहिए और उन काफिर और मुशरिक के ख्वाहिशात की पैरवी न कीजिए, बल्कि उनको कह दीजिए वकुल आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। ऐ लोगों सुनो, मैं तुम्हारी बातों पे आने वाला नहीं, तुम्हारे बताए हुए तरीके पर चलने वाला नहीं। जो पूरे कायनात का खालिक और मालिक है, जिस रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी और सारे इंसानों की हिदायत के वास्ते, रहनुमाई के वास्ते, गाइड के वास्ते किताब नाजिल किया है। मैंने उसी किताब के ऊपर ईमान लाया है। व उमिरतु लिअदिल बैनकुम, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम लोगों के दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, ऐ कायनात के लोगों सुनो, हमारा और तुम्हारा सबका रब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ऐलान कर दो कायनात के लोगों के सामने, हमारा रब भी अल्लाह, तुम्हारा रब भी अल्लाह। फिर मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। किस तरीके से इंसाफ करूं? तुम्हें मैं दावत फिक्र देता हूं कि जरा सोचो, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे कायनात का रब नहीं है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा नहीं किया? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पैदा नहीं किया? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जमीन को पैदा नहीं किया? क्या उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान को पैदा नहीं किया? क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नहीं बरसाता है? क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन से पैदावार नहीं उगाता है? हमें खिलाने पिलाने वाला कौन है? क्या अल्लाह के अलावा कोई और है? मारने और जिलाने वाला कौन है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और है? मुश्किलात से निकालने वाला कौन है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और है? हमें बीमारी और शिफा देने वाला कौन है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा और कोई है? हमारी हाजात और जरूरियात को पूरा करने वाला कौन है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और जात है? सब कुछ करने वाला जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, तो तुम फिर इस अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने अपने सर को क्यों झुकाते हो? क्यों गैरुल्लाह को मुश्किलात के वक्त पुकारते हो? क्यों उनसे हाजत रवाई करते हो? क्यों उनके लिए नजर नियाज करते हो? उनके लिए मन्नतें मांगते हो? मैं तुम्हें दावत देता हूं, अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम। जब हमारा रब अल्लाह है, तुम्हारा रब अल्लाह है, तो क्या ये इंसाफ की बात होगी कि उस अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत और रियाजत की जाए?
हरगिज हरगिज नहीं। लेकिन सुनो, मेरा काम सिर्फ दावत देना है, मेरा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देने का है। उसके बाद अगर तूने इस पर अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे वास्ते बेहतर है, लेकिन अगर तूने इस पर अमल नहीं किया तो वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे वास्ते हमारा अमाल है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे अमाल के बारे में पूछेगा, तुम्हें तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, सुनो हम तुमसे बहस करने वाले नहीं हैं। बहस करने से क्या फायदा है? और बहस उस चीज के बारे में की जाती है जिसके अंदर कंफ्यूजन होती है, जिसके बारे में कुछ इश्कालात होता है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के बारे में कुछ इश्काल है? क्या इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है? क्या सब कुछ करने वाला अल्लाह की जात नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह के दरबार से हमें मिलने वाला नहीं है? जब सब कुछ अल्लाह के दरबार से मिलने वाला है तो फिर हम गैरुल्लाह के दर में क्यों जाते हैं? हम गैरुल्लाह के दरबार को क्यों सजाते हैं? हम उन्हें आबाद करके अल्लाह के घर को वीरान क्यों कर रहे हैं? बात क्लियर है, बात साफ है। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, हमारा काम पैगाम पहुंचा देने का है, हमने पैगाम पहुंचा दिया। अमल करना ना करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखो वल्लाहु यजमउ बैनना व इलैहिल मसीर। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हम सबको जमा करेगा, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सबको हाजिर होने का है, उसी की तरफ लौट के जाने का है। वहां हमसे तुमसे सबसे हिसाब किताब लेगा। वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा कि कौन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा किताब के मुताबिक अमल कर रहे थे और कौन उसके खिलाफ वर्जी कर रहे थे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों आयतों के अंदर ये बयान किया कि देखिए जब तुम दीन की दावत और तबलीग करोगे और खुद उसके मुताबिक अमल करोगे, तुम्हारे खिलाफ साजिशें की जाएगी, फरेबकारी की जाएगी, तुम्हें हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करेंगे। याद रखो ऐसे वक्त में अपने ईमान से दस्तबरदार न हो जाना, अपने ईमान और दीन की हिफाजत करना। जिस चीज का हुक्म दिया गया है उस पर हर हाल में साबित कदम रहना, चाहे हालात ना मुआफिक हो या ना साजगार हो, किसी भी करवट हालात मोड़ ले, कभी भी इस दीन से दस्तबरदार ना होना। यही इस्तिकामत है। इस्तिकामत है तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी है, इस्तिकामत नहीं तो फिर इस दुनिया और आखिरत कहीं पे भी कामयाबी नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबे किराम को इस्तिकामत की तलकीन की। चुनांचे सही मुस्लिम हदीस नंबर 159 में सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है। वह बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी चीज बताइए कि आपके बाद फिर किसी और से इस्लाम के बारे में मुझे पूछने की जरूरत न पड़े। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कुल आमनतु बिल्लाह, तुम इकरार करो कि मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, फस्तकिम, फिर उस पर जम जाओ, उस पर डट जाओ। लोग तुम्हें डराएं, लोग तुम्हें धमकाएं, लोग तुम्हें लालच दें, कुछ भी हो जाए दस्तबरदार ना होना। इसी की मजीद वजाहत इब्न माजा की उस हदीस से होती है जिसको इमाम इब्न माजा ने हदीस नंबर 4034 के अंदर नकल किया है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझको मेरे खलील, मेरे दोस्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की, अल्लाह तुशरिक बिल्लाहि शैया, कि सुनो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को भी शरीक ना करना। व इन कुत्तेता व हुर्रिकता, अगरचे तुम्हारे जिस्म को काट काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, अगरचे तुम्हारे जिस्म का बोटी बोटी कर दिया जाए, या तुम्हें आग के अंदर डाल दिया जाए, आग के अंदर झोंक दिया जाए, आग में तुम्हें जला दिया जाए, कुछ भी हो जाए, ईमान से दस्तबरदार ना होना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना करना। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें अपने ईमान का जायजा लेने का है। क्या वाकई हमारा ईमान इस किस्म का है? सिर्फ जबान से ईमान का दावा कर देना,
थोड़ी सी मुसीबत और परेशानियां आए तो फिर ईमान से हाथ धो बैठना, ये ईमान की निशानी नहीं है। देखिए सहाबे किराम इस तरीके से इस्तिकामत दीन पर कायम और दायम थे, इस तरीके से ईमान की हिफाजत किए कि अल्लाह अकबर, क्या कहना। आज मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है या दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है, हमारे असलाफ के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ था इसी दीन इस्लाम की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानने की वजह से, वैसा जुल्म सितम अभी हमारे ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आज हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है। हम अपने ईमान को सरे बाजार रोजाना किस तरीके से नीलाम कर रहे हैं। दिवाली का मौसम आता है, दशहरा का मौसम आता है, या किसी और गैर इस्लामी त्योहार आता है, क्रिसमस का वक्त आता है, हम क्या करते हैं, अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के पास जाते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनको मुबारकबादी पेश करते हैं, उनको तोहफा और तहरीफ देते हैं। अरे जब हमने ये इकरार किया कि वो सारे चीजें कुफ्र का काम है, वो सारे चीजें शिर्क का काम है, कैसा ईमान है तुम्हारा? इकरार कर रहे हो कि वो कुफ्र है, इकरार कर रहे हो कि शिर्क है, और फिर अपने ईमान को बेच रहे हो, अपने ईमान को नीलाम कर रहे हो। क्या यही मोमिनाना शान है? क्या यही मोमिनाना सिफात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कह दिया, अगर तुम्हारे बोटी बोटी कर दिया जाए, तुम्हें आग के अंदर जला दिया जाए, फिर भी शिर्क का इर्तिकाब न करना। आज हम क्या कहते हैं, अगर हम अपने दोस्त के पास न जाएं तो वो नाराज हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोहब्बत को तूने ठुकरा दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे नाराज हो जाएगा, उसकी फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, इस्तिकामत दीन कैसे पैदा होगी? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस नंबर 16 के अंदर बयान फरमाया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही बुखारी के 3 जगह बयान किया है। हदीस नंबर 16, हदीस नंबर 21 और हदीस नंबर 6941 के अंदर बयान किया है। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सलातुन मन कुन्ना फीहि वजदा हलावतल ईमान। 3 चीजें जिस आदमी के अंदर पाई जाए उसने समझ लो कि ईमान की मिठास और लज्जत को पा लिया है। क्यों? एक इंसान कोई भी काम इसलिए करता है कि उससे उसको लज्जत मिलती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान की लज्जत और मिठास तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हारे अंदर 3 चीजें पैदा हो जाए। उनमें से पहली चीज, कायनात के अंदर जितने भी चीजें हैं, सारी चीजें एक तरफ, सारी चीजों की मोहब्बत एक तरफ, और दूसरे तरफ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना लो, और उसके मुकाबले में जितने चीज आ रही हैं सारी की मोहब्बत को ठुकरा दो। और दूसरे नंबर पे कहा, किसी से भी मोहब्बत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। अपने माँ बाप से हम मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने मोहब्बत करने के लिए कहा है। हम अपने बड़ों से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। हम अपने छोटों के ऊपर शफकत का मामला इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। तो सबसे ऊंचा, सबसे बाला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर आ जाए, अरे ये दुनिया के दोस्तों की क्या हकीकत और हैसियत है, दुनिया की दौलत की क्या हकीकत और हैसियत है। तुम इसलिए डर रहे हो कि तुम्हारा ये दोस्त तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम ये पसंद नहीं कर रहे हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हें हासिल हो जाए। अगर तुम इनकी नाराजगी को अपनाना नहीं चाहते हो तो इसके बदले में अल्लाह और उसके रसूल तुमसे नाराज हो जाएंगे। तुम इस चीज से डर रहे हो कि हमारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, हमारा कारोबार चौपट हो जाएगा। अरे तुम इस दौलत की फिक्र कर रहे हो, पूरे कायनात का मालिक, दौलत देने वाला और दौलत छीनने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, और जिससे भी मोहब्बत कर रहे हो तो लो इन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से। देखो जब भी कोई काम कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि अरे फला हम उसको काम करने का है, उनसे मुझे मोहब्बत है, वो ऐसा करने के लिए कह रहा है, चलो मैं उनसे मोहब्बत का तकाजा पूरा करते उनके साथ अच्छा मामला करो। लेकिन फिर रुक जाओ, कहो कि इनसे तो मोहब्बत करेंगे, पहले देखते हैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इन आमाल के बारे में क्या हुक्म सादिर फरमाते हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मामला करने के लिए कहा है, आमन्ना व सद्दकना, हम उसको तस्लीम करेंगे, हम वो आमाल करेंगे। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इन चीजों से रोका है तो हम उन चीजों से रुक जाएंगे मेरे भाइयों। और आखिर में तीसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि कुफ्र की तरफ दोबारा वापस हो जाना ऐसे ही नापसंद करे जैसे आग के अंदर डाला जाना नापसंद करता है। इंशाअल्लाह और अजीज, चूंकि वक्त हो गया है, आइंदा जुमा हम इसी को बयान करेंगे कि हमारे असलाफ के ऊपर किस किस्म के जुल्म और ज्यादती हुई थी इस्लाम के खातिर, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की खातिर, लोगों को एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देने के खातिर। लेकिन हजार किस्म के मजालिम ढाए गए। ऐसे ऐसे मजालिम सुन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कपकपी पैदा हो जाती है दिल के अंदर। वो हमारे साथ अगर हो जाए तो हम फौरन ही ईमान से दस्तबरदार हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आपकी कायनात के हर मुसलमान मर्द व खवातीन के ईमान की हिफाजत फरमाए।